Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So dear, after completing first and second part, today we are going to start the same chapter part 3. So as we have already discussed in our previous video that it took some time for Midge to get familiar with his surroundings. Midge cherished playing with water and learned to open the faucet himself. The time is passing smoothly in Basra. However, now it was time to go back to London. So, as British Airlines did not permit animals, so he had to book some other flight that allowed Midge on a flight but in a box. The narrator put him in a box an hour before the flight in and left for having a meal. As he comes back, he found that box was still and Mids had created holes and destroyed the internal lining. As a result, blood was coming out of the holes. He became scared and rushed to the airport as it's only 10 minutes left for the flight to take off. He cleaned the box and reached the airport on time. Also, he explained the whole incident to the air hostess, who suggested him to keep the container on his lap. Gavin was very thankful for her kindness towards him. As soon as he opened the container, the otter leaped out and disappeared, thereby developing cords in flight. Passengers had been fearful. The air hostess had taken him again to the Gavin and eventually they reached London. Mitch was fond of ping pong balls and marbles, so he even developed recreation with the narrator's broken suitcase. The narrator took him to work, and the people of London had wild guesses about the animal. A few people think him to be an infant seal, squirrel, or maybe a hippo. The utmost shocking response came from a liberal digging the hole who asked the author what's the purported to be. So, what is the conclusion at last? The story explains the bond of the author and his pet otter, and the series of incidents happened during their journey to London. I hope you will understand something about it. Okay, so now we are just going to start with the explanation from line to line of the same chapter, Mijbil the otter. Okay, so let's start with the third point. Okay, so the days passed peacefully at Basra. अब वो जो दिन थे वो धीरे धीरे पास हो रहे थे, बीत रहे थे धीरे धीरे दिन भी. But I dreaded the prospect of transporting Midge to England. लेकिन अभी भी मेरे मन में एक डर था. वो डर क्या था कि मैं कैसे मिज को इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट कराऊं, मतलब लंदन तक कैसे पहुंचाऊं उसको. अब उसको लेके तो जाना है यहाँ से, बट हाउ इज इट पॉसिबल. सो अभी तो उसके माइंड में जो ये प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी. अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं. ठीक है, अब दिन में बसरा में तो दिन शांति से बीत गए. उसको थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट करने में खुद को, बट स्टिल वो कंफर्टेबल हो गया. लेकिन अब मिज को भविष्य में उसे इंग्लैंड में और कैमिसफेरना ले जाने का खतरा जो था वो डरा हुआ था. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. क्योंकि लंदन जाने वाली जो ब्रिटिश एयरलाइंस है ना, वहां तो जानवरों को ले जाना अलाउड ही नहीं था. सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस टू अनदर एयरलाइन. तो मैंने एक दूसरी एयरलाइंस की टिकट, पेरिस से जाने वाली हवाई जहाज की टिकट जो थी वो परचेज कर ली. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिड शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स. अब जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने ये इंसिस्ट किया था कि ठीक है, अलाउ अलाउ कर देते हैं, बट वो एक बॉक्स में पैक होना चाहिए. एंड मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर मीन्स टू से कि
जोर दिया कि वो एक बॉक्स में हो और 18 इंच से ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, मैंने एक बॉक्स बनवाया और बॉक्स को अपने पैरों के पास मतलब फर्श पे रखना है, मतलब उस बॉक्स को पैरों पे रखना है। आई हैड अ मॉक बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर, एंड एन आवर बिफोर और 1 घंटा पहले वी स्टार्टेड हमारे चलने से। आई पुट मिज into the box so that he would become accustomed to it. अब क्या किया उसने, उसको पैक कर दिया 1 घंटा पहले चलने से पहले, ताकि वो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीख पाए कि उसको कितनी देर वहां पर जो है वो रहना है, तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, और जल्दी खाना खाने के लिए मैं वहां से रवाना हो गया। व्हेन आई रिटर्न्ड, जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, जब मैं वापस लौटा तो वहां एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर दृश्य जो था ना, सदमा देने वाला दृश्य था, वो मुझे दिखाई दिया। शॉकिंग सीन वी कैन से दैट। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में बिल्कुल शांति थी, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिन्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। बट लेकिन जो उसमें एयर हॉल्स थे उस बॉक्स में, और उसके जो लिड के ढक्कन के चारों ओर दरारों से ना खून निकला था और वो सूख गया था, मतलब ऐसे कुछ फील हो रहा था कि उसका खून निकल रहा है। आई वाइप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर अपॉन द लिड, मैंने जल्दी से ही क्या किया, उस ताले को निकाला और ढक्कन को फाड़कर खोल दिया। And Midge, exhausted, the blood spattered, whimpered, and caught at my leg. अब वो ढक्कन को उसने फाड़कर खोल दिया और मिज थका हुआ, खून से सना हुआ, छिनकने लगा और मेरे पैरों से बिल्कुल ही लिपट गया। When I removed the last of it so that there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until our time of the flight, and the airport was 5 meals distant. उसने बॉक्स के अस्तर को चीर कर फाड़ दिया था प्रॉपरली, और जब मैंने इसके बॉक्स के जो सिरे थे उनको हटाया, तो ताकि कोई नुकीली चीज वहां ना बचे, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो मिज को। तो अब उसको पता लगा कि सिर्फ फ्लाइट के लिए 10 मिनट्स रह गए हैं, और वहां से 5 मील की दूरी पर जो था एयरपोर्ट था। सो आई पुट द मिजरेबल, मैंने बेचारे मिज को बैक इनटू द बॉक्स, दोबारा से बॉक्स में डाला। होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड, हाथों से ही उसको लिड को क्या कर दिया, मतलब उसको वापस से बॉक्स में डाल के लिड को अपने हाथों से ही बंद कर दिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, मैं कार के पिछली सीट पर बैठ गया बॉक्स को अपने साथ लिए। As the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet, क्योंकि जो चलाने वाला था, गाड़ी जो चला रहा था, वो गलियों के बीच में से चीरता हुआ गाड़ियों को लेकर जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था, टेक ऑफ करने का वेट चल रहा था। आई वॉज रश्ड थ्रू इट बाय infuriated officials. I was rushed. अब उसने कहा कि सौभाग्य से मेरे लिए जो सीट बुक थी ना, वो बिल्कुल आगे ही थी, आगे की सीट थी। सो अब वो यही बता रहा है कि उसने क्या किया, जो गुस्से गुस्से में बैठे हुए जो अफसर थे ना, उनके द्वारा मुझे हवाई जहाज की ओर शीघ्रता से भगाया गया कि मतलब बस आप ही का वेट हो रहा है तो जल्दी जाओ। अब लकीली हुआ क्या, जो सीट थी वो मेरी बिल्कुल आगे की थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फिट विद न्यूज़पेपर, मैंने फर्श को अपने चारों ओर से जो था वो क्या किया, मैंने अपने पैरों के पास के फर्श को
समाचार मतलब न्यूज़पेपर से बिल्कुल ढक दिया। एंड रैंक फॉर द एयर होस्टेस, मैंने घंटी बजाई एयर होस्टेस के लिए। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस, जो मैंने मछली रखने के लिए दी उसको, जो उसके लिए खाने के लिए थी। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैंने उसे पिछले आधे घंटे की घटनाएं बताकर उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, विश्वास में ले लिया। I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. अब उसने विश्वास में तो ले लिया। अब मैंने उस एयर होस्टेस के लिए बहुत ही दिल की गहराइयों से अपना एक भाव जताया, और वह अपनी तरह की महारानी थी, तो उसने सलाह दी कि मुझे अपने पालतू जानवर को अपने घुटने पर रखने की परमिशन जो है वो दिला सके। और मैं कृतज्ञता की गहनता में उसका हाथ चूम सकता था। बट not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. लेकिन ओटर के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आगे जो भी हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। Nextly, we do have Midge was out of the box in a flash. अब एक ही झटके में मिज बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft. वो हवाई जहाज में नीचे तेज गति से गायब हो गया। There were speckers and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" वहां चिल्लाहटों की और चीखों से बिल्कुल भर गया वो प्लेन। एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, "चूहा! चूहा!" I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the leg of a portly, white turbaned Indian. मुझे मिज की पूंछ एक लंबी सफेद पगड़ी वाले भारतीय बैठा हुआ था, उसकी टांगों के नीचे से गायब होती नजर आई। एंड डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माय फेस कवर्ड इन करी। मैं इसके लिए झपटा लेकिन चूक गया, मैंने अपने चेहरे को कड़ी से सना हुआ पाया, मतलब सारा कुछ उसके ऊपर गिर गया। Perhaps said the air hostess with the most charming smile. बहुत ही शायद विमान जो एयर होस्टेस थी उसने सर्वात मतलब बहुत अच्छी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ कहा, इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा, इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि आप अपनी सीट पर चले जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं ढूंढती हूँ उसको और आपके पास लेकर आती हूँ। आई रिटर्न्ड टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आ गया था। I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब उसने कहा कि मैं अपनी सीट पर आके बैठ गया। मैं अपनी गर्दन उड़ाकर उस शिकार को पकड़ने की प्रक्रिया देख रहा था कि वो कैसे कर रही है। तभी मैंने अचानक से बहुत ही जानी पहचानी सी अभिवादन की चींची की आवाज को घुटनों पर आ गया, मतलब वो मैंने सुन ली आवाज, और मेरे चेहरे और मेरी गर्दन को अपनी नाक से रगड़ने लगा। सो एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव जो था ना, फाइनली वो लंदन लगभग पहुंचने ही वाले थे। सो आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, ये इस इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर लंदन पहुंच गए, वेयर ही हैज अ फ्लैट, जहां पर उनका एक फ्लैट है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब वो कह रहा है कि मिज और मैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। He would play for hours
with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. वो कई घंटों तक चुने हुए कुछ सेलेक्टेड खिलौने, पिंग पोंग बॉल, कंचों, रबड़ के फूलों और एक कछुए के कवच से जो मैं उसके लिए लेकर आता था राष्ट्र के नेटिव एशेज से, वो लगभग क्या करता था, उनके साथ खेलता रहता था. With the ping pong ball, he invented a game of his own. पिंग पोंग बॉल के साथ उसने अपनी खुद की एक गेम बनाई which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. अब टेबल टेनिस की गेंद के साथ उसने अपनी एक खुद की एक का खेल जो है वो बनाया जिसमें वो आधे घंटे तक उसका प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ उसके साथ खेलता रहता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. एक सूटकेस आई हैड टेकन टू इराक जो एक सूटकेस जो मैं इराक से लेके आया था वो घर वापसी की यात्रा में जब वो आया तो वो खराब हो चुका था. ठीक है, तो मतलब उसके अंदर कुछ डैमेज हो गया था, तो इसलिए उसे बंद करने पर भी उसका जो ढक्कन था, उसका जो लेड था ना, वो एक तरफ से बंद हो जाता था लेकिन दूसरी तरफ से नहीं होता था. सो मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन एंड लेंथ ऑफ द सूटकेस. मिज ने खोजा कि यदि वो एक ऊंचे छोर पर गेंद को रखेगा और सूटकेस की लंबाई तक लुढ़क कर नीचे चली जाएगी, मतलब जो इस साइड से वो बंद नहीं होता वो बंद हो जाएगा. So what he did then, he would dash around to the other end to ambush its rival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अब उसने क्या कहा कि मिसने तो खोज लिया कि अगर वो एक ऊंचे छोर पर गेंद को रख देता है ना तो सूटकेस की लंबाई लुढ़क कर नीचे आ जाएगी, मतलब वो जहां से बंद नहीं होता वहां से बंद हो जाएगा. अब वो उसके जो गेंद के आने पर घात लगाकर हमला करने के लिए तेजी से दूसरी छोर की तरफ दौड़ जाता. इससे चित्ता सिकुड़ कर बैठ जाता उछाल लेने के लिए और इसे हैरानी से लेने के लिए इसे पकड़ता और तेज चाल से इसके साथ उसने दोबारा से उसी ऊंचे छोर पर आ जाता. तो ये खेल रहे थे वैसे कुछ. So outside the house, I exercised him on a lead. घर के बाहर मैंने जंजीर के साथ उसे ठीक से एक्सरसाइज कराई. Preciously as if he had been a dog. जैसे कि एक कुत्ता हो इस तरह से उसको एक्सरसाइज कराई. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London street. मिस ने लंदन की गलियों में पैदल सैरों से जल्दी ही कुछ आदतें जो थी ना अपने अंदर डेवलप कर ली. Like the rituals of the children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. अब क्या हुआ, बच्चों की जो एक्टिविटी की तरह है, जो विद्यालय स्कूल से आते हुए जाते हुए अपने पैर फर्शी पत्थरों के चौरस के बीचों बीच रखते हैं. लोहे की जो रेलिंग्स हैं, सलाखें होती हैं, उसमें सीधी खड़ी प्रत्येक सेवंथ रेलिंग को जरूर टच करके जाते हैं. या बिजली की प्रत्येक दूसरे खंभे के सामने से गुजरते हैं. ऐसा करते हैं. तो अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल. वो कह रहे मेरे फ्लैट के सामने ही एक मंजिला स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल था. along whose frontage ran a long wall some 2 feet high. और उसके सामने एक 2 फीट ऊंचाई की एक नीची सी दीवार जो थी वो बनी हुई थी. On his way home but never on his way out. घर से बाहर जाते समय नहीं, मैं मुझे उस दीवार के साथ
सहारे खींचता हुआ ले गया एंड जंप ऑन टू इट। और उसने वहां से क्या की, छलांग लगाकर उस पर जाता, क्योंकि वो नीचे थी दीवार। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ द 30 यार्ड, और 30 गज की पूरी लंबाई तक सरपट भागता रहता। द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ द pupils एंड ऑफ स्टाफ विद इन, अंदर उपस्थित सभी विद्यार्थी और स्टाफ दोनों का ध्यान जो था उसकी तरफ क्या हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. ये मैं मानता हूँ कि किसी भी तरह से अजीब नहीं है कि आमतौर पे जो लंदन के निवासी हैं वो एक ऑटर को ना पहचाने, लेकिन अनुमानों के मतलब डिफरेंसेस हैं कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है। मतलब सबके लिए एक हैरानी का विषय था कि किस तरह का एनिमल है। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. जो ये ऑटर होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली रूप से एनिमल्स के किसी भी छोटे समूह से संबंधित है, जिन्हें मेस्टोलिन कहते हैं, जिसमें बिच्छू, नेवला, स्टॉट, विस्तरक आदि इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो होते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines, but the utter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. लेकिन गैसिंग प्रश्नों की एक लगातार बौछार का सामना करने के बाद, जो ऑटर की बजाय सभी मेस्टोलोनों पर लागू होती थी, वो अधिक अनियमित अनुमान था, या ये लगा लो कि एक छोटी सी सील सी मछली थी या गिलहरी पर होते थे। मतलब वो उनकी गैसिंग थी या तो सील मछली या फिर कोई गिलहरी होगी। ओके देन इट व्हाट इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? क्या ये एक वॉलरस है श्रीमान जी? Reduced me giggles and outside a dog show I heard a hippo. मुझे ही कर हंसने में परिणत कर देता, और एक कुत्ता प्रदर्शनी के लिए बाहर एक दरियाई घोड़ा है। And I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. वो ऑटर एक तरह का जानवर, एक प्राणी है जो भालू का बच्चा है, चीता है, एक ऐसा चीता जिन्हें स्वाभाविक रूप से नॉर्मली उसके उसमें जो धब्बे हैं उसमें बदल दिया गया। मिज एक उदबिलाव की बजाय कुछ और ही था, कुछ कुछ और भी था। बट द क्वेश्चन मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। मिज वॉज एनीथिंग, मिज कुछ था बट एन ऑटर, लेकिन एक उदबिलाव था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. But the question for which, लेकिन जो प्रश्न जिसके लिए I awarded the highest score, मुझे सबसे ज्यादा स्कोर मिले, came from a laborer digging a hole in the street. वो एक ऐसे श्रमिक से आया था जो गलियों में गड्ढा खोद रहा था। I was still far from him. मैं अभी भी उससे बहुत दूर था। When he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. उसका हाथ जो था अभी उसकी कमर पे था, कूलों पर रखा हुआ था, और वो मुझे घूरना उसने स्टार्ट कर दिया। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने एक एक्सप्रेशन देखा। That expression was full of surprise and we can say that कि मतलब उसके भाव जो थे ना वो बहुत ही
कुछ बता रहे थे. As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spapped, growled, and then growled out. So, her here, Mister, what is that supposed to be? अब वो कह रहा है कि जैसे मानो मुझे ये बताना चाह रहा है कि वो इंसान नहीं है जिसके साथ वो मजाक किया जा सके. मैं उसके बराबर में आया, बिल्कुल उसके पास पहुंचा, तो उसने बहुत ही गुस्से से मुझे देखा और बोला, है ये क्या चीज हो सकती है? व्हाट इज दैट सपोज टू बी? ये हो क्या सकता है? मीन्स टू से ऑल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इन दैट एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ एनिमल द ऑटर इज टू बी. So I hope you will understand this. Yes. So can you tell me what is the character sketch of Mizbil, the author? So we can say about Mizbil that he resembled like a very small imaginary dragon of the Middle Ages. It was just like a chocolate brown ball, and the main characteristic of the author is to extend and spread every drop of water. The real game which Mizbil enjoyed most was jiggling with small objects with his paws lying on the. Okay, and what type of story we can say that this is Mizbil the Otter? Mizbil the Otter by Gavin Maxwell is a beautiful story that describes the relationship between the writer and the Mizbil. We can say that this is the conclusion also, that in this the author wants to explain the love, the attachment, and the relationship between the writer and the Mizbil. And Mizbil, as you know, he is the pet, उसका pet था वो. Okay, and if I just want to ask about the real play of Otter. So the real play of Otter, according to the writer, was to lay on his back and play with small objects between his paws. Okay. Anything else you want to ask? Yes. Okay. Now my question is, why is otter called otter? उसको otter क्यों बुलाते हैं? The word otter derives from the old English word otter, otter. Okay. And in the world there are 13 different species of otters, and they are uniquely skilled at eating shellfish. Uh, its fur is waterproof, and otters are heavily threatened by environmental destruction. Otters do not make good pets. Okay, I think you will understand now. And what is the actual resident of otters? Mainly in fresh waters, rivers, lakes, and wetlands. Anything else? Anything else? So basically we can say that इसमें जो लेखक है, जो ऑथर है, वो स्कॉटलैंड में कैम्प्सफर्ना में एक बंगले में रहता था. उसके पास जोनी नाम का एक डॉग था, बट जोनी की जब डेथ हो गई तो उसने कुछ समय तक अपने पास डॉग नहीं रखा, बट उसे पेट के बिना रहने की आदत नहीं थी, तो इसलिए ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू कीप अ पेट. सो वो कुत्ता रखना नहीं चाहता था. सो 1956 में जब वो साउथर्न इराक में गया, तो उसने बिल्कुल फाइनलाइज कर लिया कि वो डॉग के बजाय अब एक ऑटर को परचेज करेगा. सो स्कॉटलैंड में उसके घर के आसपास काफ़ी पानी था, तो इसलिए उसको ये था कि हाँ, तो पानी भी है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा. लेखक ने अपना ये विचार उसने
सपोर्ट भी किया और उसको एक सजेशन दिया कि टिगरी के एक इलाके में उसको ऑटर मिल सकता है। तो उसने कहा कि उस जगह पर जाओ और ऑटर वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको मिल जाएगा। उसने अपने मित्र की डाक मेल का वेट किया, मगर लेखक की डाक जो थी वो थोड़ी लेट हो गई। सो इस बीच में उसका जो दोस्त था वहाँ से वो चला गया। सो लास्टली लेखक की डाक भी आ गई और वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ने लग गया। ठीक है, तो वहाँ पे उसको ऑर्डर जो था वो दे दिया। सो अब मेन थी कि उसको उसको लंदन वापस लेके जाना था। ठीक है, तो उसने उसके लिए फ्लाइट जिस तरह से की अरेंज की। अब वहाँ पे फ्लाइट में तो जो ब्रिटिश एयरलाइन है वहाँ तो जानवरों को ले जाने नहीं देते, तो इसलिए उसने कोई और फ्लाइट बुक कर ली। ठीक है, उसको डब्बे में पैक कर दिया और देखा कि अभी तो जैसे तैसे करके उसको बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट लास्टली वो वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ जाने के बाद वो 1 महीने तक एक साथ रहे, तो बहुत अच्छे से खेलते थे। वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एन्जॉय करते थे। बट पॉइंट ये था कि लोगों ने अनुमान लगाया कि उनको अपने अनुमानों भरे बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ा कि एक्चुअल में ये पेट है क्या? बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज वी कैन से दैट ना कि लोग पेट रखते हैं तो माउस रख लिया, कैट रख लिया, डॉग रख लिया, मंकी हो गया, पैरेट हो गए, बट एक ऑटर को एज अ पेट रखना इट्स वेरी स्ट्रेंज ना. So that is the only problem with the writer. Otherwise, he was completely adjusted with the author. Okay, I hope you will understand this. In next video, we will continue with the summary and question answers. So till then, thank you. Have a nice day.